Hello dear students, today I am here with you to share a method which is very interesting. Not only interesting, rather it will help you to solve related questions in the least time. So let's get started. Now what is the method about? Method is known as Horner's method of synthetic division. ये method हम क्यों use करते हैं? Firstly you need to understand that. This method is basically used to find the quotient and remainder of a polynomial when it is divided by a binomial. Okay. Now this particular method or this particular concept is already learned in classes 9th and 10th. But still this is an alternate way to solve the similar questions in the least time. ऐसे questions हमारे पास NTSC एग्जाम में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें टाइम ही सेव करना होता है, तो इसीलिए ये मेथड्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है. सो नाउ लेट अस लर्न दैट हाउ इज दिस मेथड अप्लाइड. बिफोर वी स्टार्ट टू लर्न दिस मेथड, it is very important for you to understand a particular concept and that is known as complete polynomial. Polynomial तो हम सब जानते ही हैं कि what is a polynomial. But actually, what is a complete polynomial? That we need to understand. Suppose I write a polynomial of degree 2, this. Okay? Now, this is not called a complete polynomial. Reason being, we do not have a term containing x here. We have, this is a 2-degree polynomial, we have x square, we have a constant, but we do not have a term containing x here. तो जब आपके पास x की टर्म नहीं है और आपको इसे कंप्लीट बनाना है, तो दैट इज नॉट एट ऑल डिफरेंट. जो टर्म आपके पास नहीं है उस टर्म को आपको लिख देना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ x. x स्क्वायर के बाद ही x आना था, तो आपने x को लिख दिया और उसके कोफिशिएंट को आपको 0 लिख देना है. ऐसा करने से आपका पॉलिनोमियल चेंज भी नहीं होता है एंड इट बिकम्स कंप्लीट ऑल्सो. तो सिंथेटिक डिवीजन का ये मेथड अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या हमारा डिविडेंड पॉलिनोमियल कंप्लीट है. अगर कंप्लीट है देन इट इज वेरी गुड, एंड इफ इट इज नॉट कंप्लीट देन वी एक्चुअली हैव टू मेक इट कंप्लीट. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेथड. मेथड में इफ यू कैन सी हियर दैट यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 व्हिच इज अ डिविडेंड पॉलिनोमियल. आपको इस डिविडेंड पॉलिनोमियल के सारे ही कोफिशिएंट्स को लिस्ट कर लेना है, लिख लेना है इस तरीके से एक रो में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है. डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, उसके सारे एक्सपोनेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखे हुए हैं. ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए एक्सपोनेंट्स जब आपके पास x के हों तो आपको उनके कोफिशिएंट्स को इस तरीके से एक रो में लिख लेना है. नाउ what number will divide these numbers, या बाहर जो हमारा डिवाइजर है उसका रोल कौन करेगा, this you need to understand. So we have to divide this polynomial by x minus 3. आपके पास जो भी डिवाइजर पॉलिनोमियल हो उसे आपको 0 से इक्वेट कर देना है. Once you equate this divisor polynomial with 0, you will get the value of x, which in this question comes out to be 3. So that gives us the divisor for our question here, and that is 3. So now it's very simple कि हम सारे टर्म्स को या x की पावर्स के साथ कंप्लीट डिविडेंड पॉलिनोमियल नहीं लिख रहे हैं. हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं अंदर और बाहर हमारे पास डिवाइजर नंबर 3 है. नाउ when we start with this method, we write the first number as it is. हम पहला नंबर as it is लिख लेते हैं नीचे आंसर रो में. इसको हमारे समझने के लिए हम इस रो को आंसर रो बोल सकते हैं. हम पहला नंबर as it is नीचे लिख लेते हैं and that means here we have written 3 the way it was. Now this number will be multiplied with the divisor. हर बार आंसर रो में जो नंबर लिखा होगा वो हर बार डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा. नाउ 3 3s are 9. So you will be writing 9 in the next column.
minus 5 and 9 will be added. Minus 5 and 9 will be added. And you are going to get answer 4. Again same procedure. This number 4 will be multiplied with 3. When you will multiply 4 with 3, so 4 3s are 12. 10 plus 12 will give you 22. 22 आया, अब इसको आपको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. So you will get 66. 66 plus 11 will give you 77. फिर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है and you will get 231. हर बार ये जो नंबर्स प्लस हो रहे हैं ये आपको कोई ना कोई नंबर रिजल्टेंट दे रहा है आंसर रो में. 231 plus minus 6 will give you 225. Okay, and this was the last thing to do in the method. ये आखिरी चीज थी जो हमने करी इस मेथड. ये होने के बाद now you can write your quotient polynomial and your remainder very easily. Now understand how. आंसर रो में जो लास्ट नंबर आपके पास आएगा दैट विल बिकम योर रिमाइंडर. वो क्या बनेगा? दैट इज 225. रिमाइंडर निकल गया और रिमाइंडर निकालने के हमारे पास और भी तरीके हैं, बट क्वोशिएंट पॉलिनोमियल बहुत आसानी से इस मेथड से निकला है. नाउ सी हाउ. 3, 4, 22 and 77 are the numbers in the answer row. 225 को हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि 225 तो रिमाइंडर बन गया. अभी जो बचे हुए नंबर्स हैं आंसर रो में ये क्या बना देंगे? क्वोशिएंट. कैसे बनाएंगे क्वोशिएंट? नाउ लेट अस सी. हमारा जो डिविडेंड पॉलिनोमियल था वो था डिग्री 4 का और आपने उसको डिवाइड किया था x - 3 से. दैट मीन्स डिग्री 1 पॉलिनोमियल से. जब आप डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आपको क्वोशिएंट में एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल मिलेगा. जब एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल मिलेगा दैट मीन्स उसकी जो टर्म होगी, जो आप पहली टर्म लिखते हैं द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ x, दैट विल बी x क्यूब. x क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो और कुछ नहीं बल्कि आपकी आंसर रो का पहला नंबर होगा. नेक्स्ट वी गो फर्दर. हमने लिखा x क्यूब के बाद हम लिखते हैं x स्क्वायर. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? हमारी आंसर रो का दूसरा नंबर दैट इज नंबर 4 हियर. आफ्टर दैट x स्क्वायर के बाद हम लिखते हैं x. x के साथ हमारी आंसर रो का तीसरा नंबर दैट इज 22 और 22x लिखने के बाद हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट की ही गुंजाइश है जो कि हो गया हमारी आंसर रो का फोर्थ नंबर दैट इज 77. So this is how we have found the quotient polynomial here and also the remainder here when a polynomial of degree 4 is divided by a given divisor polynomial which is x minus 3. Believe me dear students, it may have taken 1 minute or 1.5 minutes for you to understand this method. But when you will learn this, once you will learn this and you will try to solve the questions on your own, it won't take more than a few seconds. So are you ready to try one such question yourself?